Good morning, student. And today we are going to discuss the next topic, and that is the graphical representation of the convolution code. In last 2 and 3 lecture, we are discussing about the description of the convolution encoder, and so many parameters are there, and then how to get the output by different method, just like time domain approach, transfer method, and matrix method. And right now we are going to discuss about the how to represent in the graphical form. And just like we can say that there are the three methods to represent the convolution encoder in the form, just like code tree, trellis diagram, and state diagram. And first of all, I am going to brief about the convolution encoder and the state diagram and how it can be used to generate the code tree. Now if we consider the figure first, if we take the figure first, means this figure, in this figure, and there is the two shifting, means a two stage shift register are used, and here the three blocks are there which are used to indicate the three bits in the form of the m1. M is the message bits input, and then m1 and m2. M1 and M2 represent already shown in the figure, that is previous two successive message bits are stored in these two flip-flop. And after that, as we know, with the help of the generating sequence we get the output. And as we know here, there are the two output, V1 and V2. And V1 is the modulo addition of all the three bits M1 and M2, and V2 is the modulo addition of the first and last bits. And after interleaving or multiplexing, we get the output, finally output. तो ये ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अबाउट द इनकोडर डायग्राम। तो यहाँ पे भी है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनकोडर्स का हम कोड ट्री ड्रॉ करेंगे। एज यू नो, हमने कल जब डिस्कस किया था हमने अबाउट द हाउ टू रिप्रेजेंट द कन्वल्यूशन इनकोडर जस्ट लाइक इन द form of the nk and m. As we know, n is the total number of the encoded bit. In this there is the two output, means we can say that if we input the single bit, we get the output in 2 bits. And after that, that is small m is used to indicate, means what is the length of the generating sequence. So here we can say that generating sequence is of the 3 bits, because m1 m2 and of the 3 bits, और उसी का यहाँ पे मॉडुलो एडिशन हो रहा है, मीन्स वी कैन से दैट फॉर द आउटपुट जनरेटिंग सीक्वेंस विच इज द कम्बिनेशन ऑफ द थ्री। जस्ट लाइक B1, अगर आप इसका आप इंडिकेट करें व्हाट इज द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द B1, सिंपली ट्रिपल वन। triple means here is the modulo addition of all the bits. And like for the V2, we can say that the generating sequence of the first and last bit are connected and second bit is not connected to the output. Then we can say that in that case the generating sequence is 101. Okay. And I'm going to discuss, then this is about the brief description of the convolution encoder. And now let us consider that is state of the encoder. And as we know, the M1 and M2 are the bits which are used to indicate the states of the encoder. And just like in the uh, फिगर इन इट फिगर एंड इट टू, जस्ट एक आप देख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में है, यहाँ पे M1 आपका पहले है और ये M2 बाद में है। सिमिलरली हियर M2 इज फर्स्ट एंड M1 इज तो एंड M1 आपका सेकंड है। तो थोड़ा सा वी टेक केयर ऑफ दैट कि जो सीक्वेंसिंग यहाँ पे है चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट टू कैलकुलेट द आउटपुट एंड ऑल्सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट। ये चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तभी इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे एज वी नो, when there is the combination of the n bits, then the total input combination is the 2 to the power n. And here the two input, then the total combination is the 2 to the power n, means 2 to the power 2 is equal to 4, and which is comprises of the 0 0 0 1 1 0 and 1। एंड हियर यहाँ पे हमारा सीक्वेंसिंग थोड़ा सा अलग है, M2 को पहले लिखा गया, M1 को बाद लिखा गया इन दिस। जो आपका ये फिगर, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस फिगर में। तो हियर
A simply represent the state 00 A represent किया गया है, फिर 01 आपका B है, then 10 C है, and then 11 D है. ओके एंड एक तो आपको ये ध्यान देना, स्टेट ध्यान देना है, एंड देन अबाउट द आउटपुट. आउटपुट कैसे आपका है, वो B1 एंड B2 आउटपुट है. और सिमिलरली ये जो B1 आपका है वो तीनों बिट्स का एक्सॉर होगा, एंड B2 आपका फर्स्ट एंड लास्ट बिट का एक्सॉर होगा. ओके एंड आफ्टर दैट वन बाय वन हम यहाँ वैल्यूज को प्लेस करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूँगा ये वैल्यूज आपकी होंगी क्या. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब हम कोड ट्री के बारे में बात करें तो मीन्स अब हमें यहाँ पे मैसेज का बिट स्ट्रीम हमें नहीं पता है, बट लेट कंसीडर वन बाय वन स्टेट्स को हम प्लेस करेंगे. मीन्स वन बाय वन स्टेट आप कंसीडर करेंगे, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द ए एंड वी आर द वैल्यू ऑफ ए जो स्टेट इज M1 M2 वैल्यू आपकी 0 0 वहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो मैं ब्रीफ कर दूं यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे या कैसे इंडिकेट करेंगे, तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल by default when the encoder on, by default the value of M1 and M2 is equal to A. Then M1 M2 जो होगा 0 0 वैल्यू होगा, 0 0 के बिहाफ पे हम कह सकते हैं the state of the encoder is A. Okay, when तो one by one means by default here the value of M1 M2 यहाँ भी 0 होगा आपका और यहाँ भी 0 होगा. ये by default जब स्टार्ट करेंगे तो 0 0 हो रहा है. then one by one here we take the first of all value 0 देंगे हम, फिर अगेन हम यहाँ पे वैल्यूज को 1 प्लेस करेंगे. पहले जब 0 देंगे देन वी गेट द आउटपुट फाइंड करेंगे हम. आफ्टर दैट there is one shifting, means first of all when we drop the message bit to the M place, and after that get the output in the form of the V1 and V2, and then after getting the output then shifting the one right shift, वन बाई वन बिट्स राइट शिफ्ट करेंगे. मीन्स जो बिट हमारा वो यहाँ पे होगा यहाँ हो जाएगा, और जो बिट हमारा होगा वो यहाँ पे हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट आफ्टर शिफ्टिंग वी गेट द value of the M1 and M2, and correspondingly we get the state. And what is the next state when we drop the input 0 or either 0 or 1. ओके एक तो आपका ये हो गया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इफ वी मूव अपवर्ड मीन्स हियर वी कैन से दैट आप अगर अपवर्ड अगर आपने इनपुट अगर आपका 0 है देन आप ऊपर की तरफ आप जाएंगे. इफ द इनपुट आर 1 देन 1 मूव डाउनवर्ड. दिस कंडीशन इज दिस इज द कंडीशन फॉर ऑल द स्टेट कंसीडर हियर. तो हम वन बाई वन वैल्यूज को हम लेते हैं, फिर इंडिकेट करते हैं हाउ इट कैन बी जनरेटेड. वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. तो वो डिस्कस कर हम तो कैसे करेंगे वो मैं ब्रीफ करता हूँ मैं आपको. मैं 1 मिनट एंड ओके नाउ हमने जब इनकोडर को ऑन करते हैं देन हियर वी टेक द फर्स्ट स्टेट ए, एंड करस्पॉन्डिंगली ए के अकॉर्डिंग हमारा जो M1 M2 की वैल्यू आपकी हो गई वो हो गई आपकी यहाँ पे 0 एंड हियर ऑल्सो 0. ये आपकी वैल्यूज हो गई. then first of all we place at the place of 0 we place 0. हम पहला इनपुट हमने 0 लिया हुआ है, हमने मान लिया 0 मीन्स कि हम यहाँ पे अब जो हमारे स्टेट डायग्राम हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे. मीन्स हियर वी ड्रॉ लाइक दिस, ये लाइक दिस हमने ये ड्रॉ कर लिया. ये हमने क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज अभी हमने इनपुट्स को हमने यहाँ पे 0 दिया हुआ है यहाँ पे. and after that first of all we have to calculate the output. and अगर आप output calculate करेंगे तो as we know in the XOR gate if the number of ones are even then output is equal to 0. if number of क्या ones or odd then output is equal to 1. here 000 means there is no ones, so we can say that the number of ones is odd means output क्या होगा आपका यहाँ पे output 0 होगा. and similarly here also the output means XOR of this one and this one and we get output 0 मीन्स वी गेट द आउटपुट 0 0. तो आपने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो आप दिख रहा होगा यहाँ हमने आउटपुट को मार्क किया हुआ है 0 0, हमने आउटपुट को लिख दिया. देन व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेट, देन आफ्टर फाइंडिंग द आउटपुट ऑफ द V1 and V2 then we have to shift the bits one bit to the right position, means this bit to this one and this bit to this one, and this place is to be vacant, there is a no. Okay, and after that I think this is the M1 and this is M2 again. M1 or M2 agar aap 0 0 what should be state, then state A. then here we write the state A.
ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिला आपको, व्हेन अगर आपने स्टार्टिंग आपने स्टेट ए से किया हुआ है, अगर आप इनपुट अगर आपने जीरो दिया हुआ है तो हमारा वो जो आउटपुट होगा वो जीरो जीरो होगा। नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या होगा, आफ्टर शिफ्टिंग वन बिट देन वी गेट द नेक्स्ट स्टेप, देन आफ्टर इनपुट व्हेन जीरो एंड देन आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट आउटपुट जीरो, जो नेक्स्ट स्टेट हमारा ए होगा। ओके, देन नेक्स्ट कंसीडर फॉर इनपुट, for input 1 means this is 0 and this is again 0, again here we take 1। ओके, एंड देन अब हमने इनपुट यहाँ पे स्टेट हमने एक ही देगा था, अब हम इनपुट 1 देंगे मीन्स मूव डाउनवर्ड, मीन जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से हम डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे। एंड आफ्टर द व्हाट विल बी द आउटपुट, तो हियर इफ यू टेक द आउटपुट वी गेट द आउटपुट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ एक्सॉर लेंगे वी गेट ऑल्सो, इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी, मीन्स हियर डबल 1 राइट ओवर द लाइन। And after that, what will be the next state, and simply we have to shift means zero shift आपका यहाँ हो जाएगा and one shift to this place means here the value is 1 and 0, and 1 and 0 means m2 आपका 0 हो गया और m1 आपका 1 है, तो m2 0 और m1 1 this and this state। okay, and this state represent b। So what is the meaning of that, when we place input 1 at the place of m and we get the output 1 1 and the next state will be the b। So this is about the state A, when we by default we take the state A, when we give the input 0 then next state will be the A and output will be 0 0। When we give the input 1 at that state then the next state will be the B and output is equal to 1 1। ओके, अगेन लेट अस कंसीडर, तो हमने जो तुम्हारे जो कंडीशन से हमने चेक कर लिया फॉर स्टेट ए, एंड द नेक्स्ट वी हैव टू कंसीडर अबाउट द नेक्स्ट स्टेट दैट इज फॉर दिस वन। ओके, फॉर दिस वन बी m1 is equal to 1, right here 1 and m2 is equal to 0। ओके, एंड आफ्टर दैट एंड वी आर हियर, अभी हम यहाँ बी पहुंच गए, हम बी को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ प्लेस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस 0 मीन्स हियर वी मूव लाइक दिस, हम वैसे मूव करेंगे हम। एंड आफ्टर दैट ये मूव करने के बाद क्या होगा, अब हमें ये फाइंड करना व्हाट शुड बी द आउटपुट एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट। तो आउटपुट हम फाइंड करेंगे मीन्स ये आपका ये तीनों v1 इज द एक्सॉर ऑफ ऑल द थ्री बिट्स मीन्स हियर वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड v2 एंड फर्स्ट एंड लास्ट का जब एक्सॉर करेंगे वी गेट 0 मीन्स हियर आउटपुट इज इक्वल टू आई थिंक 1 0, या राइट नहीं क्या आपका ये 1 0 हो जाएगा आई थिंक। ओके, सॉरी 1 0 नो सॉरी दिस वन, ये आपका यहाँ होगा, सॉरी ये आपका 1 0 होगा, दिस इज नॉट, ये आपका 1 1 वाले केस पे होगा। अभी आपने कंसीडर आपने इनपुट 0 दिया हुआ है, दिस तो आउटपुट आपका 1 0 हो गया, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेट, तो ये आपका 1 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये आपका 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, मीन्स आपका यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे आपका 1 हो गया, तो m2 आपका 1 हो गया और m1 आपका 0 हो, तो 1 0 पे स्टेट क्या आपका है, दिस स्टेट दैट इज C। okay, so on the state B if we take the input 0 then we get the output 1 0 and the next state will be the C। now next condition is for at that case when input तो अगर हम फिर से अगेन प्लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो m1 है m1 आपका हो गया यहाँ पे 1 हो गया and this will be the 0, then take 1, then output क्या होगा आपका, ये 0 हो गया, ठीक है, ये आउटपुट 0 हो गया एंड क्योंकि ये आपका दो इवन नंबर ऑफ वंस हैं एंड देन v2 आपका क्या हो गया, वो 1 हो गया, देन हियर वी गेट, आपने इनपुट 1 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ये डाउनवर्ड साइड मूव करेंगे, आपका आउटपुट हो गया 0 1। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, हम द नेक्स्ट स्टेट जाएंगे तो हमारा ये आपका 1 यहाँ आ जाएगा, ये आपका 1 यहाँ आ जाएगा, मीन्स 1 1 स्टेट हुआ और आई थिंक सो 1 1 स्टेट हमारा है रिप्रेजेंट डी, तो ये आपको डी मिल गया, मीन्स at the B state when we place the 1 at M we get the output 1 0 and next state will be the
डी। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कैसे हमने जब हम बी को एक्सटेंड किया हुआ है तो बी से आपका जब आप 0 दे रहे हैं तो सी स्टेट आ रहा है, और जब 1 दे रहे हैं तो आपका डी स्टेट आ रहा है। Similarly, again, we take the next state C, and for C, M1 is equal to 0 and M2 is equal to 1. Means like this, 0 and 1. Means we are here. अब हम B से हम जो है B से हम यहाँ पर पहुँच गए, और हमने B से हम यहाँ से एक हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। And we have to calculate the output and next state at C for the input 0 and 1. एंड आफ्टर दैट फॉर 0 and 1 हमारा यहाँ पे M1 0 हो गया, M2 हमारा 1 हो गया। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी प्लेस टेक 0 मीन्स हियर वी मूव दिस साइड, दैट इज अपवर्ड साइड, एंड V1 इज इक्वल टू आई थिंक 1, even number of ones, odd number of 1 है, and then output is also 1, means here we write output 1 1. And after what will be the next state when we move this bit to this place and this bit to this place, means M1 and M2 value आपकी हो गई 0 0 0 0, the next state will be the A, ये आपको मिल गया। And so this is condition for input at the place when M is equal to 0, and the next condition for 1। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है, पहले हम राइट कर लें। C का हमारा था M1 आपका हो गया 0, और ये आपका हो गया 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, तो अब जब हमारा ये आपका V1 0 हो गया एंड V2 आपका हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। मीन C पे आप जो 1 दोगे, दिस मूव टू दिस साइड, इधर मूव करेंगे तो आउटपुट आपका 0 0 का। देखो यहाँ पे आपका ये लिखा भी हुआ है 0 0। and after that when we take what should be the next state, ये आपका यहाँ मूव किया, मीन्स यहाँ 0 आ गया, ये यहाँ हो गया, तो आपका M2 0 और M1 1, M2 0 और M1 1, that is B state, mean this state when we take the C। तो ये आपको देखो यहाँ पे B ड्रॉ किया गया है, मीन्स आप जब C पे 0 देंगे तो we get next state A, अगर आपने जब इस पे 1 दिया तो आप next state will be the B। Now the last stage, that is state 1 1 1। 1 1 case में हमें first of all here we have to write 1 and 1, and take 0, means right now we are here, represent the state D, and 0 we take, means we move like this, means upward side, and what will be the output, output will be 0 and here 1, this will be 0। तो 0 1 आपका देखा लिखा हुआ है, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, ये आपका M2 यहाँ आ जाएगा, और ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मीन्स आपका ये M1 0 हो गया और M2 आपका 1, M2 आपका 1, दैट इज C, मीन्स C स्टेट। मीन्स आप जब D स्टेट पे आप जब इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट आपका जो मिलेगा वो C स्टेट मिलेगा, जो यहाँ फाइंड हो गया। एंड आफ्टर दैट एंड द लास्ट स्टेप विल बी द last आपका फिर again we take 1 1, and one thing means here 1 and 1, okay, we take 1, तो आउटपुट आपका ये 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया, ये आपको दिख रहा है 1 0। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, आप जब 1 by 1 शिफ्ट करेंगे, अगेन द वैल्यू M1 M2 1 है, आपकी वैल्यूज क्या होगी, वो आपकी ऐसे ये D मिल गई, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हमने ऐसे चेक कर लिया हुआ है। तो इसी का ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने किस, अब ये एक्सटेंड कैसे होगा, आपने स्टार्ट किया A से, फिर आप A पे जब आपने 0 दिया अगेन आपको A मिला, ठीक है। इस अगेन को फिर आप 0 दोगे तो ये मिलेगा, फिर इसी पे आप अगेन जब आप A को 1 दोगे तो वी गेट दिस, ठीक है। तो ये A का जो आपका ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, जब 0 दोगे तो A मिलेगा और दूसरा दोगे आप B, ऐसे आपका ये बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली फॉर द B, आप जब B पे जब 0 दोगे तो वी गेट C, एंड जब 1 दोगे तो D मिलेगा। सिमिलरली आपने देखा यहाँ पे भी जो आपको B मिला है, B से आपको ये C मिला और फिर आपको यहाँ पे ये D मिला। अगेन C के लिए कैलकुलेट किया आपने, C के लिए आपको A मिला है और फिर B मिला। इसको फिर आप एक्सटेंड ऐसे कर सकते हो, ऐसे आप एक्सटेंड करोगे, फिर B का एक्सटेंड करोगे, तो इस तरीके अगले अगले स्टेज आपके बढ़ते चले जाएंगे। सिमिलरली जो आपने D फाइंड किया हुआ, D से आपको C मिल रहा है, तो C को ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ, आगे ऐसे ड्रॉ कर लो, आप अगेन D का ड्रॉ कर लो।
तो ऐसे आप जैसे से चलते चलोगे आपकी स्टेट ये फाइंड होता चला जाएगा। दिस इज द कोड ट्री। तो कोड ट्री आपको आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे आप जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, वी पुट द इनपुट जीरो, यहाँ पे इनपुट मैसेज हमने यहाँ पे जीरो दिया हुआ है एंड आफ्टर दैट हम इनपुट मैसेज जीरो जीरो के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको दिख रहा है, वो दे दिया हमने एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द दिस कंडीशन, ये आपको ट्री मिल गया। आई थिंक सो आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा कैसे है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, कैसे क्या आपको दिख रहा होगा। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट वी नो अबाउट द कन्वोल्यूशनल इनकोडर, आपने ऐसे बना लिया एंड देन स्टेट ऑफ द इनकोडर आपने डिफाइन किया हुआ है एंड आफ्टर दैट फाइनली वी गेट द कोड ट्री। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे ये कोड ट्री बना, बहुत ईजी है। तो ये सेमेस्टर एग्जाम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई जा रही हैं। नाउ नेक्स्ट तो मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। दैट इज इन फिगर 1 एंड वी हैव शोन दैट एंड द प्रीवियस टू सक्सेसिव मैसेज बिट्स M1 एंड M2 मीन्स इसके बारे में बात कर रहा है। M1 M2 जो मैं आपसे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपके जो M1 M2 होते हैं वो आपके प्रीवियस टू सक्सेसिव मैसेज बिट्स होते हैं विच आर स्टोर्ड इन दीज टू फ्लिप फ्लॉप and the input message bit M affect the state of the encoder as well as the output V1 and V2 मीन्स हमने जो हमारा ये आपका जो इनपुट है, अगर आप एक इनपुट ऑफ द मैसेज जो आपका M जो मैसेज बिट्स है वो आउटपुट को अफेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द V1 एंड V2। ठीक है, मीन्स आप जब एक बार आप इनपुट दोगे वी गेट द टू आउटपुट, मीन्स वो दो बार आउटपुट आपका इस तरीके से चेंज होगा, एक V1 की फॉर्म में एक V2 की फॉर्म में ड्यूरिंग दैट स्टेट। Whenever a new message bit is shifted to the M, the content of M1, M2 and define the new state and the output V1 and V2 are also changed according to the new state M1 and M2 and message bit M। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब आप किसी भी एक नए मैसेज बिट को आप शिफ्ट करोगे इन दैट द कंटेंट ऑफ द प्रीवियस हमारा वो शिफ्ट होगा, मीन्स M1 वाला M1 पे जाएगा और M1 वाला M2 पे जाएगा, M वाला M1 पे और M1 वाला M2 पे जाएगा। तो हमारा न्यू स्टेट डिफाइन होगा और न्यू स्टेट अकॉर्डिंग क्या होगा, हम जब आउटपुट हमारा आउटपुट भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टेट M1 एंड M2 एंड मैसेज बिट्स M। तो ऑलरेडी सब मैंने उसको डिस्कस कर चुका है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी वेरी क्लियर कट कि हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना, ऑलरेडी मैंने इसमें डिस्कस कर दिया मैंने आपको जो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड आफ्टर दैट अब हमारा लेट्स डिफाइन दी स्टेट्स आर शोन इन फिगर। तो वही चीज़ है जो हमने अभी कोड ट्री डिफाइन किया था, वो कोड ट्री आपका है। द फिगर शोज द कोड ट्री फॉर हिज इनकोडर, फॉर हिज इनकोडर जो कोड ट्री आप डिफाइन कर रहे हैं अपने इनकोडर डिफाइन कर रहे हैं एंड द कोड ट्री स्टार्ट एट नोड ए। एक्चुअली हम जब कन्वर्जन कोड को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ इनकोडर इज 0 0। So always it start from the A state, that is the value of M1 and M2 is equal to 0 and if the input message bit 1, अगर आप input message bit अगर M की जगह अगर आप 1 को drop करते हैं then the path of the tree goes downward toward the node B। वही जो डिस्कस किया, अब नीचे की तरफ आएगा move toward the B and output will be the 1 1। otherwise if the input is M is equal to 0, अगर आप M is equal to 0 input दे रहे हो at node A then path of the trees goes upward toward the node A। मीन्स ये कहना चाह रहा है आप जब उस ए स्टेट पे आप जब इनपुट 0 दोगे तो आपका वो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, वो 0 0 होगा। नेक्स्ट स्टेट 0 0 मीन्स वो स्टेट ए होगा और आउटपुट क्या होगा 0 0 मिलेगा। एंड इफ वी गिव द इनपुट 1 in that case the output will be the 1 1 and the next state will be the B। तो ये आपका एक के लिए डिफाइन किया गया। सिमिलरली एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट मैसेज बिट द पाथ ऑफ द ट्रीज गोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारा जो पाथ होगा वो ट्रीज का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आपका मूव करेगा डिपेंड अपॉन व्हाट शुड बी द इनपुट, दैट इज 0 और 1। द नोड आर मार्क्ड विथ देयर स्टेट ए बी सी और डी। चीज़ें ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर दिया तो वो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। इट शुड बी अ वेरी क्लियर, जहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये आपको दिख रहा होगा। एंड आई थिंक सो एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।